اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں اور تمام امت مسلمہ کے لیے یہ بہت مبارک موقع آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی کہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ ہم زندہ ہیں اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک ایک بہت خاص مہینہ ہے اور یہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لینے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ پہلی امتوں کا روزہ بہت مشقت والا تھا، یعنی ان کا روزہ افطاری سے افطاری تک کا تھا۔ آج بھی اگر آپ چاہیں تو آپ کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں جو ہمارے مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو کہ ان کے روزے کتنے سخت تھے اور ہمارا روزہ ان کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ سحری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اور ہمارا روزہ سحری سے افطاری تک کا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ سحری کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے اور سحری آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، یعنی جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی روزے کے لیے اٹھے اور سحری کھانے لگے تو وہ یہ نیت کرے، ایک تو روزے کی اور دوسری کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں، تو اس کا آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور باقی امتوں کے لیے نماز تراویح نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز تراویح عطا کی قرآن سننے کے لیے اور قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اور یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے اعلان کیا جاتا ہے اور اس اعلان میں 3 آوازیں 24 گھنٹے چلتی ہیں۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں، 2 کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اور تیسرا میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر ایک فرشتہ بھی اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا آگے بڑھ۔ اور ایک دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت اعلانات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں جتنی زیادہ محنت کریں گے تو آخر میں اتنی زیادہ آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کرے گا۔ باقی دنیا میں ہر کام کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے، کسی کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کریں، اس کی رحمت کو پالیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ رمضان المبارک کی کتنی بڑی برکات ہے کہ اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ ایک فرض پڑھیں گے تو وہ 70 فرض کے برابر ہوگا۔ جس طرح ظہر کے 4 فرض اور کسی بھی نماز کے جو بھی فرض ہیں تو ہر فرض کو آپ 70 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں، یہ کم سے کم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اس میں ایک نفل فرض کے برابر ہوگا، سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک میں ایک روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کا ایک فرمان میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔
वो फरमाते हैं कि जो कोई एक रोजा छोड़ दे और फिर उसकी कज़ा में क़यामत तक वो नफली रोजे भी रखेगा तो वो उस एक फर्ज को नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा जानबूझकर एक फर्ज रोजा रमजान मुबारक का छोड़ दे तो जिंदगी तो हमारी यही है ना, चंद बरस, लेकिन अगर अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको क़यामत तक जिंदा भी रखे और वो क़यामत तक नफली रोजे रखता रहे तो भी इस रमजान मुबारक के एक फर्ज रोजे की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। तो मौला अली शेर खुदा के इस फरमान की रोशनी में हमें ये चाहिए कि हम रोजों का एहतमाम फरमाएं और अल्लाह की रहमतों को लूट लें। और इसके बारे में एक और हदीस मुबारक मैं आपको बयान करता हूँ कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रमजान का इस्तकबाल किया करते थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और खुसूसी तौर पर सभी सहाबा को जमा फरमाया। जुमे का खुतबा था तो आप खुतबा बैठकर नहीं देते थे, खड़े होकर देते थे, क्योंकि आपका खुतबा भी मुख्तसर होता था। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो कौन आ रहा है। ये लफ्जी तर्जुमा नहीं, मैं आपको उसका मफहूम बयान करता हूँ। ये याद रखिए कि किसी भी हदीस का जब मैं तर्जुमा आपको बयान करता हूँ तो जो कुछ हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उसका मफहूम पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन आ रहा है और तुम किसकी तरफ जा रहे हो। और सब यूं हो गए। फिर आपने फरमाया, वो कौन आ रहा है और तुम किसकी तरफ जा रहे हो। सारे सहाबा में हलचल मच गई। तीसरी बार फिर फरमाया, वो कौन आ रहा है और किसकी तरफ जा रहे हो। सारे सहाबा किराम पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि कौन आ रहा है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई वही आई है। तो मेरे आका करीम ने फरमाया, अल्लाह नहीं। फिर फरमाया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि अल्लाह ने आपको आंख दी है कि दूर से कोई दुश्मन मदीने की तरफ आ रहा है और आपने उसे देख लिया है और वो हम पर हमला करने आ रहा है, हम तैयारी करें। तो फिर फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, ये भी नहीं। तो फिर फरमाया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि कौन आ रहा है। तो सुभान अल्लाह, मेरे आका करीम ने फरमाया कि रमजान आ रहा है। क्या खूबसूरत अंदाज था मुतवज्जा करने का सहाबा कराम को और रमजान की अजमत और हैबत बयान की इन अल्फाज में। और फिर मेरे आका करीम ने रमजान के फजाइल बयान किए कि इसमें जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत की हूरें अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह इस रमजान में अपने नेक बंदों में हमारे लिए मुंतखब फरमा और उनके जरिए हमारी आंखें ठंडी फरमा। और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और शयातीन को अल्लाह ताला कैद फरमा देता है। सारे महीनों के नाम अरबों ने खुद रखे, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी से लेकर आखिर तक, लेकिन रमजान का नाम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा। तो इस महीने के नाम और रोजे में क्या मुताबिकत है। रमजान का महीने जल जाना जब इसमें कोई रोजा रखने वाला या कोई रोजा रखने वाली जब रोजे रखता जाता है तो उसके पिछले साल के गुनाहों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से जला देता है। यहाँ तक कि जिस तरह लोहे को साफ किया जाता है आग से और बहुत सारी धातों को साफ किया जाता है आग से और ज़ाहरी मैल को साफ किया जाता है पानी से, तो पूरे साल में जो गंदगियां हमारे अंदर घुस जाती है, कभी हसद, कभी बुग़्ज़, कभी कीना, कभी कोई बुराई, कभी कोई गुनाह, तो अल्लाह ताला इस महीने में उसको अंदर से खींच के बाहर निकाल के साफ कर देता है। और मेरा अल्लाह करीम ईद की रात को फरमाता है फरिश्तों से, जिन मजदूरों ने मजदूरी पूरी कर ली तो उसके साथ क्या होना चाहिए।
تو सब फरिश्तों ने अर्ज किया अल्लाह से कि अल्लाह उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। तो फिर मेरा अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहो, मेरे बंदों ने दिन में रोजा रखा और रातों को क़याम किया और मेरा कुरान सुना, मैं इस मजदूरी के बदले इनके सारे गुनाहों को माफ करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ एक महीने के रोजे की कितनी बड़ी फजीलत है। तो हमें क्या चाहिए कि हम इसकी तैयारी करें। एक तैयारी तो ये होती है कि ज़ाहरी सी, कि हम किसी भी चीज के लिए ज़ाहरी असबाबों को इकट्ठा करते हैं, और एक तैयारी वो है कि जिसके बगैर हमारा रोजा कबूल ही नहीं होगा। एक बड़ा खूबसूरत फरमान मैं आपको बयान करता हूँ कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक दिन में 70 बार तौबा तोड़े और फिर तौबा कर ले सच्चे दिल के साथ, तो मेरे रब की नजरों में वो महबूब है और वो उसका प्यारा है। चाहे वो बार बार तौबा तोड़ता हो, लेकिन उसके बाद फिर वो रोता है और माफी मांगता है। और ये देखिए कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने आखिरी सांस तक तौबा के दरवाजे को खुला रखा है। जब तक गले का घुंघरू बंद नहीं होता, उस वक्त तक अल्लाह ताला बंदे की तौबा के लिए दरवाजा खोल के बैठा होता है। मौत नजर आए सामने और फिर कोई बंदा कहे कि अल्लाह मेरी तौबा, तो फिर वो कबूल नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, और ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है और इतनी बड़ी है, वो जिसको जब चाहे माफ कर दे। बहुत सारी अहादीस में ऐसे भी है जिसमें गुनाहगारों को अल्लाह ताला ने बाद में भी माफ फरमाया है। और यकीनन अल्लाह ताला बहुत रहीम है और बहुत करम करने वाला है अपने बंदों पर। तो ये देखिए कि रमजान मुबारक के महीने की कितनी बरकत है कि हम जो भी अमल करते हैं उसका सवाब और उसका अजर कई गुना ज्यादा होता है, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको कबूल भी फरमाता है। तो कोशिश करें कि इस महीने में अल्लाह ताला की इबादत जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है करें। और एक और सबसे अहम बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसको अपने दिल के कानों से सुनिएगा। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं जो रमजान से एक दिन पहले जिस जगह पर होते हैं और फिर ईद के दिन भी वो वहीं पर खड़े होते हैं, यानी जिस तरह वो अपनी जिंदगी गुजारा करते थे रमजान से पहले, उसके बाद फिर वो सेम उसी डगर पर आ जाते हैं। ना नमाज, ना कोई इबादत, ना कोई सलाम, ना कोई दुरूद। तो फिर एक महीना इतनी ज्यादा मुशक्कत बर्दाश्त की, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन क्या फायदा अगर बाद में फिर आप वैसे ही हो गए। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बयान करता हूँ। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और एक महीना उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर एक महीने के बाद आप उसका टेस्ट करवाते हैं और वो बीमारी जहां की थी वहीं पर है, तो फिर उसमें दो बातें हमें समझ में आती हैं। एक तो ये कि या तो डॉक्टर की डायग्नोज सही नहीं, या फिर हमने दवाई सही नहीं खाई, या दवाई के साथ हमारा परहेज पूरा नहीं, और जहां थे वहीं के वहीं खड़े हुए और हमारी बीमारी जो की तू है। अगर हम वापस डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही कहता है कि इस बीमारी से शिफा एक महीने के कोर्स से हो जाता था, तो आपको आराम क्यों नहीं आया? क्या आपने परहेज नहीं किया? तो आप क्या कहेंगे कि दोबारा मुझे एक कोर्स और करवा दें, लेकिन परहेज मैंने फिर भी नहीं करना। तो डॉक्टर्स के बारे में आपसे क्या कह सकता है? मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, होना तो ये चाहिए कि हम इस माह रमजान में अल्लाह ताला की रहमतों को समेटें, और जिस तरह हम रमजान में अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके हुजूर खड़े होते हैं अपनी गुनाहों की माफी के लिए और अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए, तो उसी तरह हम रमजान के बाद भी अपने वही मामूलात रखें, तो इंशाअल्लाह ताला इसका फायदा हमें दुनिया में और आखिरत में दोनों जगहों पर होगा। हर कामयाबी अल्लाह की रहमत से ही होती है, चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत की हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको
رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے